السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 29 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ البقرہ آیت 186 سے 189 تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طالب علم کے راستے پر چلا، یعنی کہ علم کو طلب کرنے کے راستے پر چلا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستہ کو آسان بنا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جو بھی شخص ہے نا، تو شخص یعنی انسان سے مراد ہے، یعنی کوئی بھی انسان علم حاصل کرنے کے لیے، علم طلب کرنے کے لیے جو نکلا اس راستے پہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے۔ تو آپ اور ہم سب خواتین ہیں، اور آپ سب اور ہم سب نے ضرور صبح سے کوئی نہ کوئی کوششیں کی ہوں گی۔ سب نے اپنا جو ہے ٹائم مینجمنٹ کیا، اور جلدی جلدی اپنا کچن کا کام بھی سب کمپلیٹ کیا، اور پھر اپنے جہاں پڑھنے کی جگہ ہے اس راستے تک ہم چل کر آئے، اپنے کچن، اپنے بیڈ روم، اپنے آرام گاہ کو چھوڑ کر آئے، یا کوئی بھی اپنے جو ہے نا اپنے جو پڑھنے کی جگہ ہے وہ ایریا، وہاں پر ہم نے اپنا وہ سفر طے کر کے آئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اس کوششوں کو قبول فرمائے، اور اس راہ میں اٹھنے والے ہر قدم، ہر کوشش، ہر منٹ کو قبول فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے جنت کے راستے کو آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ وہ جب پکارتا ہے تو لازمی ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے، تاکہ وہ ہدایت پائے۔ یہاں اس آیت سے پہلے اور بعد میں ماہ رمضان کا ذکر ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماہ رمضان خصوصاً روزے کی حالت اور دعا کی قبولیت کا خاص سبب ہے، اور پھر افطار کا وقت قبولیت کی دعا کا وقت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک روزے دار روزہ افطار کے وقت دعائیں کرتا ہے تو اس کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عبادی کہہ کر اپنے بندوں پر خاص رحمت ظاہر کی ہے، اور پھر اپنے قریب ہونے کا بھی ذکر کر کے دعا کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ سے کوئی دعا کرے جس میں نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کوئی قطع رحمی ہو، مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے 3 چیزوں میں سے ایک عطا فرما دیتے ہیں۔ یا تو اس کی دعا جلد قبول کر لیتے ہیں، یا آخرت میں اس کا ذخیرہ کر لیتے ہیں، یا اس سے اتنی جو ہے برائی یا مصیبت کو ٹال دیا جاتا ہے۔ صحابہ نے کہا، پھر تو ہم بہت دعا کریں گے۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہاں پہ جو آیت میں الفاظ آئے ہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، دعا کی قبولیت کے سلسلے میں 2 حکم دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان پر لازمی ہے کہ وہ بھی تو میری بات مانے، ہے نا۔ ہم تو اللہ تبارک تعالیٰ سے سب دعائیں کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی سے ساری نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اور پھر بھی ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بس چاہیے ہے کہ وہ بھی میری بات مان لے۔ تو لازمی ہے کہ وہ ہم اللہ کی بات مانیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا ہے تو خواہ وہ دعویٰ کرتا رہے، مگر توبہ کے بغیر اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ روشن نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کے سارے کام کر رہا ہے، احکام اللہ کے ہیں اس کے خلاف وہ سارے کام کر رہا ہے، تو پھر دعائیں بھی نہیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ تم سود مت کھاؤ، سود کا لین دین ختم کر دو۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے، سب کچھ سود کے اوپر ہی ہے، انٹرسٹ کے اوپر ہی چل رہا ہے سب کچھ۔ اگر ہم جو گھر بنائیں گے بھی تو پورا کا پورا وہ لون کے لے رکھا ہے ہم نے، اور لون کی قسطیں جاری ہر مہینے کٹ رہی ہیں نا۔ تو یہ سب کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام ہیں۔ تو کم کریں، اور جو ہے کوئی غم بھی نہیں ہوگا پھر۔ لیکن آج انسان زیادہ کے چکر میں پڑ کے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، سود، بیاج، رشوت، چوری، دھوکہ دھڑی، یہ سب کچھ عام ہو گیا ہے، عام۔ تو اس لیے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو جب دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر کیا ہوتا ہے، انسان کس کا طرف جاتا ہے نا، غیر اللہ کے آستانوں پر جاتا ہے۔ تو انسان کو جو دعائیں کرنے والا ہے، جب دعا نہیں قبول ہوئی تو پھر وہ گمراہ ہو گیا ہے، صراط مستقیم سے بھٹک کر وہ غیر اللہ کے آستانے پر جاتا ہے نا۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا گیا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا لِي،
कि तुम भी मेरी जो है ना, मैं भी तुम्हारे लिए जवाब दूँगा, मैं भी तुम्हारी बात मानूँगा, पर तुम भी तो ईमान ले आओ। तुम भी तो वही करो जो तुमको कहा जा रहा है करने को। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी का ज़िक्र फरमाया जो तवील सफ़र करता है, बिखरे हुए बालों वाला है, गुबार से भरा हुआ है। वो अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाता और कहता है, या रब, या रब। हालाँकि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम और वो हराम ग़िज़ा के साथ जो है पला बड़ा भी था। तो इसकी दुआ कैसे कबूल होगी? ये मुस्लिम की हदीस है। तो इससे पता चलता है अगर कोई शख्स पूरा खाना-पीना, रहना, उठना, बैठना हर चीज़ उसका हराम का है और वो हराम चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर कहाँ से उसकी दुआएँ कबूल होंगी ना? तो फिर दुआ नहीं कबूल होती है। दूसरा हुक्म ये भी है कि मुझ पर ईमान लाओ। वलयुमिनु बी, यानी तुम मुझ पर ईमान भी लिया और यकीन रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक की दुआ कबूल की जाती है जब तक कि कोई गुनाह या कतर रहमी की दुआ ना करे, बशर्ते ये कि जल्दी भी ना करे। पूछा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जल्दी क्या है? तो फरमाया, ये कि कोई कहे कि मैंने दुआ की और नहीं देखा कि मेरी दुआ कबूल हुई। हाँ, ऐसे अल्फाज भी अक्सर लोग कहते हैं कि इतने सालों से दुआ कर रहे हैं, मेरी दुआ ही नहीं कबूल हुई ना। आपको पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ कब की थी ना, और उनकी दुआ कब कबूल हुई? हजारों साल के बाद। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलीलुल्लाह थे, अल्लाह के दोस्त थे, हनीफ थे और अल्लाह के सबसे पसंदीदा और महबूब बंदे थे। तो हमें दुआओं में जल्दी नहीं करनी चाहिए ना। और दुआ अल्लाह तबारक तआला अपनी हिकमत के साथ कबूल करते हैं, कबूल फरमाते हैं। कभी भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम इतने दिनों से दुआएँ कर रहे हैं, मेरी तो दुआएँ कबूल ही नहीं हो रही है। तो दुआ दरअसल क्या है? दुआ इबादत है। इबादत की सबसे आला और रफ़ा किस्म और सबसे ज़्यादा साहिब शर्फ़ चीज़ जो है, वो दुआ है। हदीस में आता है, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही असल इबादत है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। दुआ इबादत का मग़ज़ है। तो दुआ अल्लाह तबारक तआला से खूब करनी चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इतने दिनों से दुआएँ कर रहे हैं कि मेरी दुआएँ नहीं कबूल हुई ना। इसकी वज़ह से लोग दुआ करना छोड़ भी देते हैं अक्सर ना। और ये नहीं देखते कि अल्लाह तबारक तआला ने हमें पहले ही ऑलरेडी कितनी सारी नेमतों से माला-माल कर रखा है। चंद चीज़ें जो माँगता है बंदा ख्वाहिशात की वज़ह से और वो नहीं मिलती, तो फिर इंसान कुफ़्र और शिर्क में उसकी वज़ह से मुब्तला भी हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। जब आप कह दीजिए, मेरे बंदों को खबर दे दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरे बंदे जब पुकारते हैं और मुझे आवाज़ देते हैं, दुआ करते हैं, फ़इन्नी करीब, तो मैं भी बहुत करीब हूँ। इससे पता चलता है अल्लाह हमारे बहुत करीब है। चाहे हम दुआ जैसे माँगे, ज़ोर से माँगे, धीमे से माँगे या दिल ही दिल में अल्लाह से माँगे, अल्लाह हमारी दुआएँ बहुत सुनते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी दुआएँ सुनते हैं, वो पुकार सुनते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि अल्लाह हमारी पुकार ना सुने, हमारी दुआ ना सुने। चाहे जितना ही गुनहगार इंसान हो, वो अल्लाह उसकी दुआ सुनते हैं, पुकार सुनते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, फ़इन्नी करीब, बेशक मैं तो बहुत करीब हूँ अपने बंदों के। आप सोचिए अल्लाह तबारक तआला कहाँ हैं? अर्श पर है ना। सातों आसमान में सबसे जो ऊपरी की जगह होती है, सातों आसमान के जो ऊपर एक अर्श है, अर्श के ऊपर अल्लाह तबारक तआला की ज़ात है। और अल्लाह तबारक तआला हम सब क्या है, इस ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला वहाँ से हमारी पुकार सुनते हैं, फरियाद सुनते हैं। हम दिल में भी अल्लाह को पुकारते हैं, दिल ही दिल में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक तआला वो भी सुनते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे ज़्यादा इल्म वाले हैं। ये सब कैसे होता है, किस बिना पे होता है? क्योंकि अल्लाह तबारक तआला का इल्म बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा इल्म वाले हैं। अल्लाह तबारक तआला हैं तो आसमानों पर, लेकिन वो अपने इल्म की बिना पर अपने बंदों की दिल की बात तक की जानते हैं। दिल में जो दुआएँ हैं ना, वो भी जानते हैं। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात तो अर्श पर है, सातवें आसमान पर है। अल्लाह तबारक तआला हमारी पुकार, हमारी फरियाद, हमारी दुआएँ इसलिए सुनता है क्योंकि उनको इल्म है। अपनी इल्म की बिना पर वो हमारी फरियादों को सुनता है। अल्लाह का इल्म बहुत वसी है, ठीक है? तो इसमें कभी भी इंसान को शक नहीं होना चाहिए कि हम तो यहाँ पे हैं, इतने नीचे हैं और अल्लाह तबारक तआला इतने ऊपर हैं, आसमान पर हैं, अर्श पर हैं, तो हमारी जो है दुआ कैसे सुनेगा? तो यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, आप खबर दे दीजिए जब भी मेरे बंदे मुझे पुकारते हैं और सवाल करते हैं मुझसे मेरे बारे में, तो फ़इन्नी करीब, तो कह दीजिए मैं बहुत ही करीब हूँ। जब भी वो मुझे पुकारते हैं, उजीबु दावत दाई इज़ा दानी, जब भी कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है, दुआ करता है, तो मैं भी उसकी दुआ कबूल करता हूँ। मैं उसकी जो है पुकार को सुनता हूँ, उसकी पुकार को कबूल करता हूँ, दुआ को कबूल करता हूँ। जो जब एक एक मोमिन है, अगर उसको इस पर यकीन आ जाए, तो आप यकीन जानिए दुनिया में शिर्क का खात्मा हो जाए। कोई भी किसी गैरुल्लाह के आस्ताने पे ना जाए, कोई भी किसी के कोई भी वली, पीर, मुरीद का कोई आस्ताने, सारे ये सब बंद हो जाएँ। लेकिन लोग ना कुरान खोलते हैं, ना इन इन आयतों पे ना गौर फ़िक्र करते, ना तदब्बुर करते, इसीलिए इंसान भटक जाता है ना।
जबकि अल्लाह तबारक तआला ने हर चीज़ खोल-खोल कर कुरान करीम में आयतें वाज़ेह बता दी हैं, वाज़ेह फरमा दी हैं। और फिर जब भी बंदा पुकारता है तो फिर उसकी वो जवाब भी देते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी हर हाजत का अल्लाह से सवाल करो, हत्ता कि तुम्हारे जूते का जो तस्मा है ना वो भी टूटने का। यानी कि एक जूता होता है, उसके नीचे का एक जो तस्मा होता है वो भी टूटे, तो तुम सिर्फ़ अल्लाह से माँगो। अल्लाह ताला गैब से इंतज़ाम कर देगा। वो तुम्हारे लिए गैब से तुम्हारे असबाब, तुम्हारी दुआएँ, तुम्हारे सब कुछ कबूल कर लेगा। लेकिन तुम्हें माँगना किससे है ना? सिर्फ़ अल्लाह से। आपको किसी से नहीं माँगना है, आपको अल्लाह से माँगना है। अल्लाह से माँगेंगे तो कभी भी इंसान रुसवा नहीं होगा, हक़ीर नहीं होगा, ज़िल्लत ख़्वारी नहीं होगी। जो अल्लाह को छोड़ के औरों से माँगते हैं तो फिर वो शिर्क में मुब्तला होते हैं, ज़लील होते हैं, ख़्वार होते हैं। दुनिया में भी वो रुसवा होंगे और आख़िरत में भी वो रुसवा होंगे। इसी तरह से एक और हदीस में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से सवाल नहीं करता तो अल्लाह उस पर गज़बनाक होता है। तो अल्लाह से दुआ करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ करना बहुत ज़रूरी है। जब इन बंदा अल्लाह से दुआएँ नहीं करता और है ना, कहता है कि छोड़ो हमने तो इतनी दुआएँ कर ली, अब क्या करें, नहीं कबूल हो रही, हटाओ फिर छोड़ो बस खत्म। तो इस तरह से फिर अल्लाह का गज़ब और ज़्यादा बढ़ता है, अल्लाह का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है। तो इंसान को चाहिए अल्लाह से माँगते रहें, दुआएँ करते रहें। तो कुछ वजूहात होती हैं जो दुआएँ कबूल नहीं होती हैं। क्या वजूहात होती हैं दुआएँ कबूल नहीं होने की? तो उसमें ये बताया गया है कि जब भी कोई मुसलमान अल्लाह से ऐसी दुआ करे जिसमें कोई गुनाह की बात या कता रहमी ना हो, तो अल्लाह ताला इसे 3 बातों में से एक ज़रूर अता फरमा देते हैं। या तो उसकी दुआ फ़ौरन कबूल कर ली जाती है, या इसे आखिरत के लिए ज़ख़ीरा फरमा दिया जाता है, या इस दुआ की बरकत से इस पर आने वाली मुसीबत को टाल दिया जाता है। तो 3 दर्जात हैं दुआ। पहला क्या है? या तो दुआ कबूल कर ली जाती है। दूसरा, या तो उसके लिए आखिरत में ज़ख़ीरा कर ली जाती है। तीसरा, या है उस शख़्स पर आने वाली मुसीबत को, परेशानियों को दुआ कबूल ना करके उसे दूर कर दिया जाता है। तो कहा जाता है कि आखिरत में जो ज़ख़ीरा होगा इतना होगा, जब बंदा मोमिन अल्लाह तबारक तआला से क़यामत के दिन मुलाकात करेगा, उसको बड़े-बड़े ज़ख़ीरे दिए जा रहे होंगे, बड़े-बड़े। बंदा मोमिन कहेगा, ए अल्लाह तबारक तआला, मैंने तो ऐसे कोई भी नेकियों भरे काम नहीं किए थे और मुझे तो यहाँ पे बड़े-बड़े ज़ख़ीरों का अंबार दिया जा रहा है। तब अल्लाह तबारक तआला फरमाएँगे, ये वही ज़ख़ीरे हैं जब तुम दुनिया में दुआएँ करते थे और तुम्हारी दुआएँ कबूल नहीं होती थी। तो बंदा मोमिन कहेगा कि काश ऐ मेरे रब, तूने मेरी दुनिया में एक भी दुआ नहीं कबूल की होती, तो आज मुझे और भी बहुत सारे ज़ख़ीरे मिल जाते ना। तो इससे ये पता चलता है। तो बंदा मोमिन हसरत करेगा कि काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ही ना की जाती। तो दुआ अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमाते हैं, ज़रूर कबूल फरमाते हैं। बस लेकिन क्या है उसमें शराइत हैं कुछ, कुछ दुआ के शराइत हैं। पहली चीज़ ये कि इंसान अल्लाह की नाफ़रमानी करने वाला ना हो, अल्लाह की हुदूद को क्रॉस करने वाला ना हो। शराब पीने वाला, है ना? इंसान ज़िना कर रहा है, शराब पी रहा है, सूद खा रहा है, गुनाह के काम कर रहा है ना, फिर वो कह रहा है कि मेरी दुआएँ नहीं कबूल होती है। कहीं न कहीं हमें अपने आमाल को भी चेक करना चाहिए कि कहीं हमारा कोई ऐसा काम, कोई ऐसा बुरा चीज़ जो हम कर रहे हैं जिसकी वज़ह से हमारी दुआएँ नहीं कबूल हो रही हैं ना। और कहा जाता है कि कोई भी इंसान, कोई एक मोमिन अगर कोई जो फ्यूचर बताने वाले के दर पे जाकर अपने फ्यूचर का हाल जानने की कोशिश करता है, तो उसकी भी 40 दिन की दुआएँ नहीं कबूल होती हैं। तो चेक करना चाहिए, कहीं न कहीं कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है जब इंसान की दुआएँ नहीं कबूल होती। फिर दूसरी चीज़ ये कि इंसान हलाल चीज़ खाए, हराम से बचे। और फिर तीसरी चीज़ ये कि इंसान गाफ़िल दिल ना हो, यानी कि दिल कहीं और, दिमाग कहीं और, हम हाथ फैलाए हैं, हम हथेलियाँ उठाए हैं और अल्लाह से माँग रहे हैं ना। अपने आप को हाज़िर रखें, अल्लाह के सामने अपने आप को हाज़िर रखें और दिल से दुआ करें, दिल गाफ़िल ना हो, दिल और दिमाग सब कुछ जो है कॉन्संट्रेट करके अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करें, तो अल्लाह तबारक तआला दुआएँ ज़रूर कबूल करते हैं। और ख़ास वक़्त क्या है, रमज़ान के जो अफ्तारी का वक़्त है, उस वक़्त दुआएँ कबूल होती हैं। अल्लाह तबारक तआला बंदों की दुआएँ कबूल फरमाते हैं, ख़ास वक़्त है। और रमज़ान में जो तहज्जुद का भी वक़्त होता है, उसमें भी अल्लाह तबारक तआला दुआएँ कबूल करते हैं। तहज्जुद में तो डेली है, रोज़ अल्लाह तबारक तआला अपनी बंदों की दुआएँ कबूल फरमाते हैं। और ख़ास करके आप लोग तहज्जुद, रमज़ान में भी तहज्जुद में ज़रूर जो है अल्लाह की खूब इबादत करिए, खूब नमाज़ पढ़िए, खूब दुआएँ कीजिए। और जो है सहरी का जो वक़्त है और इफ्तार का वक़्त है, ये सब दुआएँ की कबूलियत का वक़्त होता है। और हमारी दुआएँ भी ना कितनी छोटी होती हैं। इंसान जो भी होता है तो वो ज़्यादातर उसकी ख़्वाहिश क्या होती है, वो दुनिया ही माँग रहा होता है। तो हमें आख़िरत को सामने रख कर अपनी दुआएँ करनी चाहिए, क्योंकि आख़िरत की जो ज़िंदगी है बहुत बड़ी है, बहुत तवील है, बहुत ज़्यादा लंबी है। तो इसलिए हमें ज़्यादातर दुआएँ आख़िरत के लिए दुआएँ करनी चाहिए। और 3 अशख़ास हैं, इनकी दुआएँ रद्द नहीं होती हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआएँ रद्द नहीं होती हैं। पहला इमाम आदिल, दूसरा रोज़ेदार की रोज़ा इफ्तार करने के वक़्त, और तीसरा मज़लूम की दुआ।
ये ऐसे लोग हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती हैं। और आप देखिए उसमें जो सेकंड वाला है उसमें हम सब भी शामिल हैं कि हम सब भी अल्लाह से दुआ करें रमज़ान में रोज़े के वक्त, तो उस वक्त हमारी दुआएं कबूल की जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उस वक्त क्या होता है ना, ख़वातीन किचन में ही बिजी रहती हैं, लेकिन किचन के सारे काम जल्दी जल्दी पूरे करके अपने सारे काम मुकम्मल करें और फ़ौरन अल्लाह के आगे अफ्तार के वक्त बैठ के खूब दुआएं करनी चाहिए उस वक्त। अल्लाह तबारक ताला की यहाँ पे एक सिफत है कि अल्लाह तबारक ताला कह रहे हैं कि मैं करीब हूँ। करीब, ये भी अल्लाह की सिफात है। मैं पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ जब भी वो मुझे पुकारे। जब भी कहीं भी दिन में या रात में आहिस्ता या ज़ोर से वो जवाब देते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमारी दुआओं का जवाब देते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ याद ही नहीं करते हमें, बल्कि हमारी दुआओं का भी जवाब देते हैं। तो उनको चाहिए, यानी कि बंदों को चाहिए कि अल्लाह का हुक्म माने। आप भी अल्लाह का जवाब दिया करें। मसलन जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो क्या हमें कहना है? हम सबको क्या कहना चाहिए? समीना व अताना। हमें ये कहना चाहिए कि सुना हमने अल्लाह ताला और हम इताअत करते हैं। जो आपने हुक्म दिया हम इसको फ़ौरन इंशाअल्लाह बजा लाएँगे। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि कह दीजिए मेरे बंदों से कि जब भी वो पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार का जवाब देता हूँ। मैं उनकी पुकार का जवाब देने वाला हूँ। तो लेकिन तुम्हें भी तो अल्लाह की बात माननी है ना। तुम्हें भी तो अल्लाह की बातों को, अहकामात को मानना है। तो जब एक जैसे मिसाल के तौर पे एक एक माँ के 2 बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा बहुत ज़्यादा जो है माँ की जो है बात नहीं मानता है, कहना नहीं मानता है, और एक बच्चा बहुत ज़्यादा अपनी माँ का कहना मानता है, हर बात मानता है, हर बात मानता है। तो माँ किसको चाहेगी? जो हर बात मानने वाला होता है ना उसको चाहेगी, और फिर उस बच्चे की भी वो हर बात मान लेती है ना, वो छोटी सी भी कोई भी या बड़ी से बड़ी कोई बात कहता है तो वो उस बच्चे की बात पहले सुन लेती है। इसी तरह से बंदों का भी मामला है कि जो बंदे अल्लाह की फर्माबरदारी कर रहे हैं, दिन रात अल्लाह की बात मान रहे हैं, अल्लाह के आगे सर सजदे में रख के अल्लाह से दुआएँ और गिड़गिड़ाए तौबा कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह तबारक तआला भी उन बंदों की जो दुआएँ हैं ना, वो कबूल फरमाते हैं। उनके हाथ उठने से पहले उनकी दुआएँ कबूल कर ली जाती हैं। और आपको पता है कि तालिबे इल्म, उसको अगर उसके इल्म हासिल करने की वजह से उसको दुआएँ माँगने का भी अगर मौका नहीं मिलता है, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी दिल में आने से पहले ही उसकी दुआएँ कबूल फरमा लेते हैं। तालिबे इल्म की बहुत फ़ज़ीलत है। इल्म हासिल करना और इस पे लगे रहना, ये कोई मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो इल्म के रास्ते में जब कोई होता है, तो फिर वो दुआएँ तो अल्लाह से जब वो करता है कबूल होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि वो उसको माँगने का भी फुर्सत नहीं होती, क्योंकि इतना उसका बिज़ी शेड्यूल हो जाता है। तो अल्लाह तबारक तआला उसके लिए आसानियाँ, आसानियाँ करते चले जाते हैं। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें, तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत ही करीब हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार को जवाब भी देता हूँ। पुकार को सुनता भी हूँ और जवाब भी देता हूँ। और जब भी पुकारता है मुझे कोई, जब भी कोई मुझे पुकारता है, और मैं उनकी दुआओं को कबूल भी करता हूँ। इसलिए वो लोगों को भी चाहिए ना कि वो मेरी भी बात मान लिया करें और वो मुझ पर ईमान भी रखें। यही उनकी लिए भलाई का बायस होगा। आयत 187, उहिल्ल लकुमुस्सियामु रफ़सा इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताबा अलैकुम वअफ़ा अन्कुम फ़लआना बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खैतुल अबयद मिनल खैतिल अस्वदी मिनल फ़ज्र थुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैलि वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद तिल्का हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया है। वो तुम्हारे लिबास हैं और तुम उनके लिबास हो। तुम्हारी पोशीदा ख़यानतों का अल्लाह ताला को इल्म है। उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमाकर तुमसे दरगुज़र फरमा लिया। अब तुम्हें उनसे मुबाशरत की और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीज़ों को तलाश करने की इजाज़त है। तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा सिया धागे से ज़ाहिर हो जाए। फिर रात तक रोज़े को पूरा करो और औरतों से उस वक्त मुबाशरत ना करो जब तुम मस्जिदों में एतिकाफ़ की में हो। ये अल्लाह ताला की हुदूदें हैं, तुम उनके करीब भी ना जाओ। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयतें लोगों के लिए बयान फरमाते हैं ताकि वो बचें। यहाँ अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक रुख़सत है और इस हुक्म में तब्दीली भी है जो इब्तिदाए इस्लाम में था। अफ्तार के बाद इशा तक खाना पीना और मुबाशरत करना हलाल था। जब कोई नमाज़े इशा अदा कर लेता या सो जाता तो अगली रात तक खाना पीना और मुबाशरत करना हराम हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मशक्क़त का सामना करना होता था। इस आयत करीमा में रफ़सा के जो मायने हैं वो मुबाशरत करने के हैं। अगर कोई शख्स, यानी कि अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोज़ा रखा, यानी कि एक जो सहाबा में से एक शख्स थे,
वो अंसार में से थे, उन्होंने रोज़ा रखा और वो अफ्तार करने से पहले सो जाते हैं। अफ्तार करने से पहले सो जाते हैं तो अगली रात की आमद तक खा पी नहीं सकते थे। तो कैस बिन सिरमा अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रोज़ा रखा हुआ था और दिन भर अपनी ज़मीन में काम करते रहे, यानी कि खेत वगैरह जो बाग वगैरह है उसमें वो काम करते रहे। अफ्तार के वक़्त बीवी से पूछा, खाने के लिए कुछ है क्या? तो उसने जवाब दिया, नहीं है। अलबत्ता मैं जाती हूँ और कहीं से कुछ लाती हूँ। इतने में उनकी आँख लग गई और सो गए। बीवी वापस आई तो उन्होंने देखा कि वो सो गए हैं तो कहने लगी, हाय अफ़सोस! तुम सो गए। अगले दिन जब वो दोपहर हुई तो ये बेहोश हो गए। इस वाक़ये का जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ज़िक्र किया गया तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फ़रमाई। अल्लाह ताला ने आसानी अता फ़रमा दी कि अब क्या है कि तुम इशा के बाद ही नहीं, रात भर भी तुम खा सकते हो। पूरी रात खाओ पियो और रात में अपनी बीवियों से मुबाशरत करो। लेकिन क्या करो, जैसे ही जब सहरी का वक़्त आए तो फिर क्या करो, फिर तुम रोज़ा रखो। तो ये एक सहाबी का वाक़या था जिनका नाम था कैस बिन सिरमा, अंसारी थे। और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि रोज़ों की रातों में अपनी बीवियों से तुम्हें मिलना यानी मुबाशरत करना हलाल कर दिया गया है। वो तुम्हारे लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। यानी कि वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनके लिबास हो। तो लिबास से यहाँ तशबीह दी गई है शौहर और बीवी के रिश्ते को। लिबास इंसान को सुकून देता है। लिबास इंसान के ऐब छुपाता है। लिबास इंसान को खूबसूरत बनाता है। लिबास इंसान के लिए ज़ीनत और प्रोटेक्शन भी है। तो शौहर और बीवी भी एक दूसरे के लिए खूबसूरती का ज़रिया भी हैं, प्रोटेक्शन भी हैं और सुकून का ज़रिया भी हैं। अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम वअफ़ा अन्कुम। अल्लाह ने जान लिया कि तुम अपने नफ्सों से खयानत कर रहे थे, यानी रातों को ये ताल्लुक कायम कर रहे थे लेकिन श्योर नहीं था ना कि ये ठीक है कि नहीं है, हम गुनाह तो नहीं कर रहे या हम गुनाह कर रहे हैं। तो उसने तुम पर मेहरबानी की और तुमको माफ़ कर दिया। बस अब तुम उनसे मुबाशरत करो और अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिख रखा है इसे तलाश करो और खाओ और पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सुबह की सफ़ेद धारी रात की सियाह धारी से वाज़े हो जाए, यानी रोज़ा शुरू होने का वक्त शुरू हो जाए। फिर रोज़ा रात तक की उसको पूरा करो। और जब मस्जिदों में जाओ, जब यानी कि एतिकाफ की हालत में जाओ, तो एतिकाफ की हालत में उनसे मुबाशरत ना करना, यानी कि जब इंसान आखिरी जब अशरा होता है ना, तो वहाँ पे एतिकाफ करता है मस्जिदों में। मस्जिदों में जब मर्द हज़रात एतिकाफ़ के लिए जाएँ तो फिर औरतों से उनको मुबाशरत नहीं करनी है। एतिकाफ़ की हालत में बीवी से मुबाशरत और रोज़ा किनार की इजाज़त नहीं, अलबत्ता मुलाकात और बातचीत तो जायज़ है। और ये एतिकाफ़ मस्जिद में ही होता है, यानी कि एतिकाफ़ के लिए मस्जिद ज़रूरी है। तो ये अल्लाह की हुदूदें हैं, तुम उनके करीब भी मत जाना। तो अगर इंसान को अल्लाह तबारक तआला ने इजाज़त तो दी है ना, रात में ये जो पूरी रात पड़ी हुई है इंसान के लिए, तो उसमें जो भी है ठीक है करे, लेकिन अब वही 10 रातें जो आखिरी की 10 रातें किसी ने अगर एतिकाफ़ की नियत कर ली है, तो वो ना रात में ना दिन में बीवी से मुबाशरत नहीं कर सकता है। तो ये अल्लाह की हदें हैं, इनके पास भी नहीं जाना। और यहाँ पे इतनी खूबसूरत मिसाल अल्लाह तबारक तआला ने शौहर और बीवी की दी है, शौहर और बीवी के लिए बताई है कि लिबास की तशबीह दी है। तो शौहर और बीवी का एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है और जिसमें अल्लाह तबारक तआला ने कहा है कि तुम एक-दूसरे के लिबास हो ना, लिबासुहुन्ना, वो तुम्हारी लिबास है और तुम उनके लिबास हो। तो लिबास इंसान के ऐब को भी छुपा देता है ना। तो शौहर और बीवी का रिश्ता ऐसा है कि एक दूसरे के राज छुपाए, एक दूसरे के जो है ना जो ऐब छुपाए, ऐब को ढाके, लकीर उसको पूरे में फैलाए। और फिर और शौहर और बीवी का रिश्ता ऐसा है कि सुकून का भी रिश्ता होता है, एक दूसरे को देख के सुकून होता है ना, और हर तरह से सुकून का है रिश्ता। तो बीवियों को भी इसी तरह से होना चाहिए ना कि आजकल की खवातीन क्या है ना, अपनी शौहर की ही नाशुक्री करती हैं और उनको बदसुकूनी पहुंचाती हैं और उनको ऐसे अल्फाज कहती हैं कि शौहर दुखी हो जाता है। तो बीवियों को चाहिए कि अपने शौहर के लिए वो सुकून का बायस बने, खुशी का बायस बने, कि शौहर देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। ऐसी बीवियाँ अच्छी बीवियाँ बनने की कोशिश करें और बेहतरीन बीवी बनने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पे लिबास से तशबीह दी है। और लिबास क्या करता है, सर्दी गर्मी जाड़े से इंसान को प्रोटेक्ट करता है ना, हर तरह से इंसान को बचाता है और लू से, गर्म हवाओं से, ठंड से, जाड़ों से, हर तरह से प्रोटेक्शन देता है। तो शौहर बीवी के रिश्ते में भी इसी तरह से एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं ना। आयत 188, वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल वतुदलू बिहा इलल हुक्कामि लितअकुलू फरीकम मिन अम्वालिन नासि बिल इस्मि व अंतुम तालमून। और एक दूसरे का माल नाहक ना खाया करो, ना हाकिमों को रिश्वत पहुंचाकर किसी का कुछ माल जुल्म सितम से अपना कर लिया करो, हालांकि तुम जानते तो हो। यानी रिश्वत ना लेना है ना देना है, ना रिश्वत दो ना लो, ताकि किसी का हक तुम हथिया ना जाओ। ना तो तुम जोरावर करके या उसको धमकी दे करके कुछ ऐसे करके लोगों से पैसा ऐड के लोगों का पैसा ना ले लो, डकैती करके ना, काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि धमकी देते हैं, डराते हैं और उनसे लोगों से पैसे वसूल कर लेते हैं। और इंसान जो है ये भी नहीं देखता कि हलाल है कि हराम है। या
रमज़ान के बाद रमज़ान में तो इंसान सही चल रहा है, सारे रूटीन सही है, सब हलाल के सारे काम हो रहे हैं, सारे काम बंद कर दिए गए हराम के, लेकिन फिर क्या ईद हुई और फिर सारे के सारे काम शुरू हो गए हराम के। तो रमज़ान के बाद भी इंसान को ऐसे ही रहना जैसे कि वो रमज़ान में था। तो रिश्वत से बचे इंसान और लोगों का फ्रॉड या धोखाधड़ी से बचे इंसान, और हर तरह के जो जो ऐसे काम होते हैं ना, ऐसे जिससे ऐसे ज़राए होते हैं जिनसे वो आमदनी होती है, जैसे जुआ है या ऐसी चीज़ें, जब ऐसी जगहों पे माल अपना लगाया जाता है जिसमें जैसे रेस वगैरह है या सट्टा वगैरह है, जुआ है और बैंक में है, लोन में है, ऐसे जो इन्वेस्ट लोग करते हैं, तो इन तरह के तमाम बातिल तरीकों से इंसान को बचना चाहिए अपना माल लगाने से। और क्योंकि इंसान ये रिश्वत है, सूद है, ब्याज क्यों लेता है? क्योंकि उसको दुनिया चाहिए होती है, उसके सामने जो दुनिया नज़र आ रही होती है ना, उसको दुनिया की ख्वाहिशातें अपनी पूरी करनी होती है ना, कि जितनी ज़्यादा इंसान दुनिया के पीछे भागता है, तो उसकी ख्वाहिशात भी उसी की बढ़ती चली जाती। तो उनको चाहिए होता है कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, बच्चे अमेरिका जाके पढ़ लें, एजुकेशन हासिल कर लें, फिर बड़ी-सी बहुत बड़ी-सी खूबसूरत-सी शादियाँ करेंगे, लोग वाह-वाह कहेंगे। दुनिया की ख्वाहिशात के पीछे इंसान मर मिटता है और फिर इसी की वजह से वो सारे के सारे बातिल तरीकों से माल खाना शुरू कर देता है। बातिल तरीके से झूठ लेना, रिश्वत खाना और जुआ है, सूद, ब्याज है, हर तरीका, हर हराम तरीके से वो माल को कमाना शुरू कर देता है। तो इन तमाम तरीकों से इंसान को बचना चाहिए और हलाल की रोज़ी कमाए। हलाल की रोज़ी से कमाने से क्या होगा? दुआएँ भी कबूल होंगी ना। सबसे पहली शर्त बता दी गई कि दुआ की कबूलियत किससे होगी? हलाल खाने से, हलाल ओढ़ने से, हलाल पहनने से, हलाल माल से। तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तुम एक-दूसरे के माल नाहक तरीके से ना खाया करो, ना ही यानी कि तुम रिश्वतें ना लिया करो और एक-दूसरे पे ज़ुल्म-सितम करके एक-दूसरे का माल हड़प ना कर जाया करो, और ना ही तुम हाकिमों को रिश्वत पहुँचाया करो, ना तो रिश्वत लें और ना रिश्वत दें। बहुत ज़्यादा इससे बचें। और ना तुम माल खाओ ज़ुल्म सितम से अपना करके, यानी कि किसी पे ज़ुल्म करके भी किसी का माल जो है नहीं गबन करना इंसान को। ये ज़ुल्म हराम है। अदालत का फ़ैसला ज़ुल्म और हराम को जायज़ और हलाल को जायज़ को हलाल नहीं कर सकता। यानी कि एक दिन से किसी पे ज़ुल्म किया गया है और फिर वो ज़ुल्म किया गया ज़ालिम मज़लूम अपना जो है कहाँ लेके जाएगा ना? तो फिर वो अदालत में जाएगा लेकर के जिसके ऊपर ज़ुल्म किया गया है। तो फिर वो जाके अपना फ़ैसला हाकिम के सामने रखेगा। अब जब आज हमारे क्या-क्या होता है ना, इतना ज़्यादा करप्शन है कि यहाँ पर भी यही रूटीन है, लेकिन एक इस्लामी शरीयत की यहाँ बात हो रही है, वहाँ पे हाकिमों को ना तो रिश्वत पहुँचाया जाए और जो जो फैसला करने वाला है ना तो उनको रिश्वत दी जाए। रिश्वत से पूरी तरह यहाँ मना किया गया है, लेकिन हमारे इंडिया में तो करप्शन ही करप्शन है। खैर, तो जहाँ पे इस्लाम है और जहाँ पे लोग इस्लाम के अहकामात को मानते हैं, तो वो इसको पूरी तरह फ़ॉलो करें और हर ईमान वाले को चाहिए कि इसको फ़ॉलो करे। तो अगर हम सब मुसलमान इसको फ़ॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपनी रहमत में ढाँप लेंगे। और अल्लाह का हुक्म है ना कि अल्लाह तबारक ताला ने हुक्म दिया है कि तुम बातिल तरीके से माल ना खाओ, वला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिली, और ना तुम खाओ माल एक-दूसरे के नाहक तरीके से, बातिल तरीके से। और ना ही रिश्वत लेना है, ना ही सूद खाना है, ना ही इंसान को जुए से, और जो शराब बेच करके ना, शराब का भी लोग कम जो है पैसा लगता है और ज़्यादा प्रॉफ़िट आता है, लाखों रातों-रात वो लखपति बन जाते हैं। हर वो अशिया जो हराम है, उसकी कमाई भी वो हराम है। जैसे शराब हराम है, तो शराब की जो कमाई वो भी हराम है। इसी तरह से जो है इंसान म्यूज़िक, नाच, गाने की भी जो कमाई अर्न करता है, वो भी क्या है? हराम है। सब कुछ हराम है। ये सारी जो हराम करदा चीज़ें हैं, उनकी कमाई भी हराम है। तो हराम चीज़ों की कमाई ना खाए और ना ही इंसान झूठ-फ़रेब करके, धोखाधड़ी दे के इस तरह से वो जो कमाया हुआ पैसा ना वो इस तरह से वो खाए। आयत 189, यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज वलैसल बिर्रा बिअन तअतुल बुयूता मिन ज़ुहूरिहा वलकिन्नल बिर्रा मन इत्तक़ा वअतुल बुयूता मिन अबवाबिहा वत्तक़ुल्लाहा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। लोग आपसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दीजिए कि ये लोगों के वक़्तों के और हज के मौसम के लिए है, और इहराम की हालत में अपने घरों के पीछे से तुम्हारा आना कुछ नेकी नहीं है, बल्कि नेकी वाला तो वो है जो मुत्तकी है, और घरों में तो दरवाज़ों में से आया करो और अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह तबारक तआला यहाँ फरमा रहे हैं कि जो सहाबा थे जो सहाबा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी थे, सबसे पहले ईमान लाने वाले थे ना, तो वो क्वेश्चन पूछते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और वो हर बात पूछते थे जो उनको नॉलेज नहीं थी। चाँद घटता बढ़ता है, कभी चाँद बिल्कुल बारीक हो जाता है शुरू की तारीखों में, और कभी जो चाँद होता है फुल मून हो जाता है, फिर कभी वही चाँद फिर घटना शुरू हो जाता है अपोज़िट डायरेक्शन से। तो अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि सहाबा पूछते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यसअलूनका अनिल अहिल्ला, चाँद के बारे में। तो ये चाँद क्यों घटता बढ़ता है? क्या वजह है?
तो आप अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो जो चाँद है ना, वो तो हज के दिन और जो वक़्त या महीने मालूम करने का जो तरीका है। इसकी ये जो है इस्लामी कैलेंडर हमारा जो सारा डिपेंड होता है चाँद यानी कमरी कैलेंडर पर ही होता है। शरीयत के जितने भी अहकाम होते हैं वो कमरी कैलेंडर के हिसाब से होता है। अहिल्ला ये हिलाल की जमा है। पहली और दूसरी रात के चाँद को हिलाल कहा जाता है, फिर इसे कमर कहा जाता है। यानी कि पहली और दूसरी रात का जो चाँद होता है ना, वो हिलाल होता है। फिर इसे कमर कहा जाता है। लोगों ने चाँद के घटने बढ़ने की हिकमत दरियाफ़्त की तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि चाँद हर माह हिलाल की सूरत में नमूदार होता है। फिर वो 14वीं को पूरा हो जाता है। आखिर रात बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर दोबारा नए चाँद की सूरत में वो नमूदार हो जाता है। जिससे शहरों और बस्तियों के अलावा रेगिस्तान, समंदर में रहने वालों को भी मालूम हो जाता है कि नया महीना शुरू हो गया है। और वो इससे मुख्तलिफ हालतों से तारीख भी मालूम कर सकते हैं। जबकि सूरज हमेशा मुकम्मल रहता है, उसके हिसाब से वक़्त और तारीख मालूम करना दुनिया के हर हिस्से में रहने वालों के लिए मुमकिन न था। इसलिए अल्लाह ताला ने बदलने वाले चाँद को बतौर कैलेंडर मुकर्रर फरमाया। हज और जो भी जैसे रमज़ान है, ईद है, शव्वाल है, ये तमाम तारीख़ें इंसान की और जैसे कि जो शरीयत के अहकामात है ना, बेवा की इद्दत और दूध पिलाने की जो माँ को जो अपने बच्चे को दूध पिलाने का जो वक़्त है, वो मुद्दत है, वो और तलाक के बाद जब इंसान की तलाक होती है, इसके बाद की जो इद्दत है, ये सब कुछ कमरी कैलेंडर के हिसाब से तय किया गया। वलैसल बिर्रु तातुल बयूता मिन ज़ुहूरिहा हज का ज़िक्र आया तो अय्याम हज में जाहिलियत की एक रस्म का भी यहाँ पे बात बताई जा रही है। बर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत कर फरमाते हैं कि ये आयत हमारे बारे में नाज़िल हुई। अंसार जब हज करते फिर वापस आते तो अपने घरों के दरवाजे से दाखिल नहीं होते थे। अब अंसार का एक आदमी हज से आया और अपने दरवाजे की तरफ से दाखिल हो गया तो गोया उसे उसकी आड़ दिलाई गई यानी कि उसको उस मतलब शर्म दिलाई गई कि तुम दरवाजे से कैसे दाखिल हो गए। तो यहाँ पे एक ऐसी रस्म वहाँ पे जो है राइज थी जिसकी वजह से जैसे कोई एहराम बांध के अपने घर से अगर निकल जाता था तो वापस वो अपने घर में दरवाजे से अगर उसको कोई काम पड़ गया ना तो वापस इंसान लौट के अपने घर में वापस दरवाजे से नहीं आता था, वो पीछे से फलांग करके पीछे के दरवाजे से फलांग कर कूद कर आता था। तो ये जो फिजूल की जाहिलाना रस्म रस्म थी, यानी दौरे जाहिलियत में एक जो रस्म का वो खात्मा भी किया जा रहा है इस आयत में कि जब वो हज के लिए निकल जाएं तो फिर वो अगर वो किसी काम की वजह से वापस दोबारा आते हैं, तो घर आना पड़ जाता था, तो वो दरवाज़े से नहीं आते थे। तो वो कहते थे कि हमारे सरों के ऊपर कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, यानी कि ज़ाहिरी रस्मों की इस कदर पाबंदी करते थे और असल रूह को वो भूल जाते थे। तो बाज़ लोग रिचुअल्स में इस कदर पड़ जाते हैं कि वो इबादत की रूह भूल जाते हैं। तो इससे बचने को कहा गया है और दूसरा अहम हुक्म क्या है? काम सही तौर पर करो, यानी ऐसे तरीके पर जिससे वो काम हो जाए। तो जो भी काम करे इंसान अच्छे काम करे, इबादत के काम करे, लेकिन तरीका क्या होना चाहिए? इत्ताअत रसूल, सुन्नत के सामने रख कर यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रख कर हमें वो सारे काम करने चाहिए। और जो है ना खालिस अल्लाह के लिए करनी चाहिए। अमाल की कबूलियत की क्या है शराइत 2 इत्ताअत रसूल यानी कि सुन्नत और फिर इखलास के साथ, कि खालिस अल्लाह के लिए किया गया हो और तरीका सुन्नत रसूल हो। तो इन 2 जब ये 2 शराइत पूरी होंगी तो फिर इंशाअल्लाह फिर वो अमल कबूल हो जाएगा। लेकिन ज़माने जाहिलियत में इस तरह की रस्में जो है ना राइज थी और इस वज़ह से फिर वो जब एहराम बाँध कर अपने घरों से जब निकल जाते थे, तो अगर उनको किसी काम की वज़ह से वापस घर आना पड़ता था, तो फिर वो वापस दरवाज़े से मेन डोर से नहीं आते थे। फिर वो पीछे की तरफ से गैलरी से या छज्जों से या खिड़की से लांग कर फलांग कर वापस आते थे, जिसकी वज़ह से उनको चोटें भी लग जाती थी। तो अल्लाह तबारक तआला ने इस जाहिलाना रस्म को ख़त्म करा और अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि नेकी ये नहीं है कि तुम जो है ना घरों के पीछे से आओ, वलैसल बिर्रा बिअन तातिल बयूता, कि ये तो नेकी नहीं है कि एहराम की हालत में तुम अपने घरों के पीछे से आना तुम्हारा ये कुछ भी नेकी नहीं है, बल्कि नेकी तो वो है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम अल्लाह का डर इख्तियार करो, तुम अल्लाह से डरो, तुम परहेज़गार बनो और वातुल बुयूत मिन अबवाबिहा और तुम घरों में तो दरवाज़ों से आया करो। तो इससे ये पता चलता है कि फिज़ूल की जो है ना ऐसी बात जो हम सुनते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, हमारे ख़ानदान से होता चला आ रहा है, लेकिन उसकी कोई भी दलील नहीं है। कुरान से ना हदीस में कोई भी हमें उसकी बात ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती, तो फिर ऐसी क्या है, ऐसी रस्मों को ऐसे जो रिवाज है उसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सिवाय परेशानी के और कुछ नहीं है। और आपको पता है कि बिदअत जो करेगा जो दीन में बिदअत को अमल करेगा तो बिदअत करने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर से पानी ना पी सकेगा। क़यामत के दिन आपको पता है कितनी शिद्दत की प्यास होगी उस दिन। कहीं भी कोई पानी नहीं होगा। एक इंसान आपको पता है जब फ़ौत होता है तो वो शदीद प्यासा भी होता है और जब वो उठेगा क़यामत के दिन तो फिर उसको और भी प्यास होगी क्योंकि ना उस दिन सूरज सवा नेज़े पे होगा और ज़मीन जो है तांबे की कर दी जाएगी। इतनी ज़्यादा आग बबूला ज़मीन होगी और चारों तरफ गर्मी ही गर्मी। और
جو ایمان والے ہوں گے وہ جلدی جلدی اللہ کے جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حوض کوثر کی طرف جا کے فوراً پانی پی رہے ہوں گے تو پھر ان کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن جنہوں نے دنیا میں رہ کے بدعتوں کو فالو کیا، بدعتوں کو ایجاد کیا، بدعت میں اپنی زندگی پوری ختم کر دی نا، سامنے حق آنے کے بعد بھی انہوں نے اس کو نہ مانا، تو پھر ایسے لوگوں کو حوض کوثر سے پانی نہیں پلایا جائے گا، وہ ہٹا دیے جائیں گے، بھگا دیے جائیں گے اس حوض کوثر سے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرمائے۔ کہیں بھی کوئی بھی چھوٹی موٹی جن کو ہم نہیں بھی جانتے ہیں ان بدعات کو اللہ تعالیٰ ہم سب سے چھڑوا دے اور صرف قرآن اور سنت کو فالو کرنے والا، اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔